Hello, dear friends. Whoa, welcome back to Bodhluar Academy. In the last lecture of class 10, chapter 4, quadratic equation, we have discussed how to find the roots of a given quadratic equation by direct quadratic formula. Okay, so in this video, we will discuss some more examples from your NCERT textbook. Now, see, from your NCERT textbook, in example 13 there are the 3 examples, but we are going to discuss only 2 examples because the second examples depends on the nature of roots. ओके तो वो जो एक्सरसाइज के बाद जो आपका अगला पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स, इसके पहले भी मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि जब तक आपका नेचर और रूट्स ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, तब तक आप उसको छोड़ दीजिए, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो देखिए अब एग्जाम्पल 13 में से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर 3x² - 5x + 2. Okay, this is the given quadratic equation. Now see, what is the direct quadratic formula? X equals to -b plus minus √ of b² - 4 times ac upon 2 times a. Okay, but in a given quadratic formula we have a constant ABC which are unknown. Then how to find, how to get this ABC? Oh, then compare this given quadratic equation with the standard form of quadratic equation. Yes. Now see, if I compare these 2 equations, I get A equals to 3. Oh, b equals to -5 and c equals to 2. Now you have ABC to put values in this equation 1 to get your roots of the quadratic equation. Now see, x equals to minus as it is. What is b? b is how many? -5. Oh, -5, write it down, plus minus √ of b². That means -5 whole square. How many? -25? No, 25. Okay, 25 minus of 4 times a. A is how many? 3. Okay, then c is how many? 2. Okay, no problem. Upon 2 times a is how many? 3. Okay, we have substituted all the values of ABC in this quadratic formula. Now just algebra, minus get plus minus √ of 25 minus 4 into 3 12 into 2 24. Okay, then in the denominator 3 into 2 6. Okay, x equals to 5 plus minus 25 minus 24. 25 minus 24 1. Root of 1 also 1. Root of 1 6. Okay, now see, x equals to 5 plus 1 upon 6. Okay, पहली बार हमने प्लस ले लिया, अब क्या लेना है हमको? माइनस. 5 minus 1 upon 6. Okay, now see, 5 plus 1 6. 6 by 6, that means x equals to 1. This is your first root for this quadratic equation. Now see the second one, x equals to 5 minus 1 4. 4 by 6, divide with this 2, that's why 2 by 3. This is your second quadratic, sorry, not quadratic bhai, this is the second root for this given quadratic equation. कितना सिंपल, कितना डुम्बरी. क्या करना था? ये था हमारा फार्मूला. ओके, इस फार्मूले में हमको ABC की वैल्यूज चाहिए थी, तो हमने क्या कर लिया, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया और ABC फाइंड आउट किया. फिर हमने वैल्यूज पुटअप किया, फिर गया प्लस माइनस माइनस प्लस, बस दैट इज ओके. फिर हमने ये 2 वैल्यूज रूट्स फाइंड आउट किए. दीज आर द सॉल्यूशंस और द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. भाई सिंपल ही था. अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये भी बड़ा सिंपल है. ओके, तो देखिए हमने जो क्वेश्चंस छोड़ दिए उनको हम नेचर ऑफ रूट्स ये टॉपिक हो जाने के बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उस टॉपिक पर डिपेंड्स है. ओके, तो देखिए अब दूसरा सवाल. अरे बाप रे,
ओके ओके, एग्जाम्पल 13 में ये तीसरा सवाल है, लेकिन हमारा दूसरा सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 2x² माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमको, डायरेक्ट मेथड से हमें फाइंड आउट करा है। तो जो भी गिवन फार्मूला है पहले लिख लेना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स a। ओके, आई विल से दिस इज the equation number 1 where you have to put the values of ABC. Then how to get the values of ABC? Compare with the standard form, that is x square plus bx plus equals to 0. Now compare this given equation with the standard and get the values of A is how many? 2, and B is how many? Minus 2 root of 2, and C is how many? 1. Okay, now I have the values of these unknown ABCs. Now I am going to put these values in this equation 1 to get my solutions. Therefore x equals to minus of b is how many? Minus 2 root 2. Okay, minus 2 root 2 plus minus under root of b square, that means minus 2 root square, minus 2 root square, इनका स्क्वायर करना है। अब देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट और 2 गेट कैंसिल, यानी कि 2, 4 इंटू 2 8। ओके, दैट मीन्स बी स्क्वायर इज नथिंग बट हाउ मेनी? 8 माइनस 4 टाइम्स ए इज हाउ मेनी? 2, एंड सी इज हाउ मेनी? 1। ओके, नो नीड टू वरी। नाउ सी 2 टाइम्स ए इज हाउ मेनी? 2। ओके देन अब देखिए x इक्वल्स टू माइनस माइनस गेट प्लस, यानी कि 2 रूट 2 प्लस माइनस 8, 4 इंटू 2 8, 8 8 माइनस 0, रूट ऑफ 0 0, रूट ऑफ 0 0। अब देखिए 2 इंटू 2 4। ओके, अब देखिए therefore x इक्वल्स टू 2 रूट 2 प्लस 0 बाय 4। ओके, नाउ सेकंड x इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस 0 बाय 4। ओके, ओके 2 रूट 2 प्लस 0, again 2 root 2, therefore x equals to 2 root 2 by 4, and here 2 root 2 minus 0, 2 root 2 upon 4। अब देखिए 2 से डिवाइड होंगे यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा? रूट 2 बाई 2। ओके, रूट 2 बाई 2। नाउ से अब देखिए ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। अब रूट ऑफ 2 है ना, तो देखिए अब रूट 2 इंटू रूट 2, ये क्या बन जाएगा? देखिए ये फार्मूला रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा? रूट ऑफ ए इंटू बी। ओके, देयरफॉर रूट ऑफ 2 इंटू 2, एंड रूट ऑफ 2 इज नथिंग बट रूट 4, एंड रूट 4 इज नथिंग बट 2। दैट्स वाई आई कैन राइट 2, I can write 2 like this, root 2 into root 2. Therefore x equals to root 2 as it is. In place of 2 I can write root 2, again a root 2, 1 root 2 1 root 2 get cancelled, therefore x equals to 1 by root 2, and again here same, x equals to 1 by root 2. These are the your roots फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास कितना था? x इक्वल्स टू 1 था शायद, और x इक्वल्स टू 2/3। ओके, अब देखिए ये दोनों भी रियल नंबर्स है लेकिन डिस्टिंक्ट है। ओके, अब देखिए ये दो रूट्स कैसे है? दोनों भी रियल है। ओके, बट कैसे? इक्वल। ओके, रियल बट इक्वल, रियल बट डिस्टिंक्ट, लाइक दैट। ओके, तो हम जब नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे ना, तो इसके ऊपर हमारा डिस्कशन चलने वाला है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल। एग्जाम्पल 14 फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्या है हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये ओहो, लोग तो नहीं रहा है क्वाड्रेटिक, बट कैसा होगा? अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों? अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया तो 1/0 क्या होगा?
1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो वो तो फिर क्वाड्रेटिक क्या कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, दैट्स वाई दे हैव गिवन अ कंडीशन दैट x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये हमारा गिवन इक्वेशन, अब देखिए ये हमारा गिवन इक्वेशन पहले नज़र में तो लग ही नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक है करके, लेकिन देखिए अब थ्रू आउट इक्वेशन हम x से डिवाइड करेंगे। कैसे, x मल्टीप्लाइंग बाय x, ओके, थ्रू आउट इक्वेशन। अब देखिए x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो x स्क्वायर बन जाएगा, अगर x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो x गेट कैंसिल, ओनली 1 रिमेन्स। अगर यहाँ से x से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3x। आयरन में क्या कर दिया हमने, थ्रू आउट इक्वेशन x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा x स्क्वायर, ये +1, ये 3x। अब देखिए x स्क्वायर एज इट इज। नाउ आई एम शिफ्टिंग +3x on the left hand side, plus becomes a -x and +1 as it is equals to 0. Is it now quadratic equation? Yes. Why it is not quadratic equation? Because here a is how many, 1, which is a non-zero. That's why this is the quadratic equation. तो देखिए पहले नज़र में तो हमको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये quadratic equation है करके, लेकिन जस्ट हमको जो भी दिया है ना उसको रीअरेंज करना था। ओके, अब देखिए आप देख रहे हो कि हमको तो भाई डिनोमिनेटर में ऐसा तो x नहीं चलेगा, तो इस x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट इक्वेशन, फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई हो गया फॉर्म। अब देखिए अब कीजिए स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर, किस लिए, ABC वैल्यूज निकालने के लिए। तो सो a is 1, b is -3 and c is 1। ओके, नो नीड्स टू वरी। नाउ सी x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, सॉरी एक बार मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। Boys, are you sleeping? No, don't sleep. Now see, what is b? -3. Just put plus minus √b square, यानी कि -3 square 9. Very good. Minus of 4 times a into c. A is how many? 1. C is how many? 1. यानी कि 1 into 1 again 1. 2 times a. A is how many? 1. Therefore x equals to minus get plus minus √9 minus 4 upon 2. X equals to 3 plus minus √9 minus 4 √5 upon 2. ओके, अब क्या करना है, अब सेपरेट करना है। x इक्वल्स टू प्लस 5/2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2। एक बार हमने प्लस ले लिया, एक बार हमने क्या ले लिया, माइनस। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली नज़र में भाई तो लग ही नहीं रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है करके, लेकिन हमने रीअरेंज कर लिया अच्छे से, उससे मल्टीप्लाई उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x कर दिया तो हमको ये मिल गया। फिर हमने क्या कर लिया, प्लस 3x हमने शिफ्ट कर दिया, फिर जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया उसको, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके ठीक है भाई, अब हमको पता चल गया कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, सॉरी जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। फिर हमने क्या कर लिया, हमको चाहिए ABC, ये तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना था। फिर हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लिया और ABC निकाल डाला। फिर क्या, फिर तो डायरेक्ट फार्मूला में डाल दिया, फिर गया प्लस माइनस रूट, दैट्स इट, वी फाउंड द आंसर। ओके, दीज आर द 2 रूट्स और 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए रियल है, देख के पता चल रहा कि रूट्स रियल है बट डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ओके, रूट्स रियल, डिस्टिंक्ट, रियल, इक्वल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट ये है ना, हाँ इसको डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। अब देखिए स्ट्रगल, यू आर इन द 10th क्लास नाउ। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। नाउ सी, टेक दिस 1/x minus of 1 upon x minus 2 equals to 3, where x should not be equals to 0 और x should not be equals to 2। अब देखिए अगर मैंने x के जगह यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिया तो 1/0 क्या बन जाएगा, अगेन इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, यानी कि पूरा खत्म, काम ही बेकार हो गया। फिर अब देखिए
अगर x इक्वल्स टू 2 पुटने से क्या फर्क कर रहा है भाई, अगर यहाँ पे अगर तूने x इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा 0, अगेन 1 माइनस 0 इन्फिनिटी, फिर खत्म, सत्यानाश हो गया फिर तो। इसलिए इन्होंने ये कंडीशंस दिया है, क्योंकि अगर आपने ये वैल्यूज यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारा गिवन इक्वेशन, तो भाई कौन से एंगल से नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है करके, क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है x और यहाँ पे x माइनस 2, हम तो पहले एक काम करेंगे, इन दोनों का बेस सेम कर डालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे चाहिए x माइनस 2, ओके, तो x माइनस 2 से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ओके ओके। व्हाट यू वांट हियर, x ऊपर भी नीचे भी। अब देखिए अब इनका हो गया बेस सेम, तो वो बेस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि x माइनस 2, ओके, माइनस x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ओके भाई, हमने क्या कर लिया, पहले ये जो बेस था उनका ये सेम कर लिया, अब बेस कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया ऊपर x माइनस 2 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 3। अब देखिए अब ये आई कैन शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई x माइनस 2 माइनस x इक्वल्स टू 3 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 2। ओके, नाउ सी प्लस x माइनस x गेट कैंसिल, माइनस 2 रिमेन्स, ओके। अब देखिए कमाल, अब देखिए 3x से इससे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, अब 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 से, माइनस 3 इंटू 2 6x, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट माइनस 2 ऑन द राइट हैंड साइड, दैट्स वाई 3x स्क्वायर माइनस 6 and minus 2 becomes plus 2 equals to 0. Is it quadratic equation? Yes sir. Why it is not quadratic equation? Because the coefficient of x square 3, which is a non-zero. This is the condition for to be quadratic equation. तो देखिए भाई ये दिया कैसा था और हमने फॉर्म कैसा कर लिया, ओके। क्या करना था, जस्ट हमने बेस सेम कर लिया, कॉमन निकाला, फिर हमने ये शिफ्ट कर दिया, फिर जस्ट हमको रीअरेंज करना था। कई बार ऐसा रहता है कि रीअरेंज नहीं रहता, डायरेक्ट वो नहीं देते थे कि भाई ले लो प्लेट खा लो, कभी कभी हमको भाई परोसना भी पड़ता है। अब देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको क्या करना है हमें, कंपेयर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अब देखिए ए निकल के आया 3, बी आया -6 और सी निकल के आया 2, ओके। ये क्या हो गया अब ए बी सी की जगह। अब देखिए अब है हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला, therefore x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स a। अब पुट कीजिए x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b इज ऑमिनी -6, ओके, नो नीड टू वरी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -36, ओके, स्क्वायर है ना भाई, -4 टाइम्स a इज ऑमिनी 3, c इज ऑमिनी 2, ओके, 2 टाइम्स a इज ऑमिनी 3। अब देखिए x इक्वल्स टू माइनस माइनस गेट प्लस यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 36, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 माइनस ऑफ 24 अपॉन 2 इंटू 3 6, therefore x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24 12 अपॉन 6। नाउ सी I can write 12 like this, under root of 4 into 3, okay, but root of 4 is 2, that's why 2 root of 3, okay. I can write root of 12 like 2 root of 3, therefore x equals to 6 plus minus 2 root of 3 by 6. Now just to separate, x equals to 6 first time plus 2 root of 3 by 6 and x equals to 6 minus 2 रूट 3 बाय 6। पहले हमने प्लस ले लिया फिर बाद में माइनस। अब देखिए ऊपर से यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकलना में डिवाइड करना, 6 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 3, या टी डिवाइड कर दिया तो 2 गेट कैंसिल, रूट 3 ओनली रिमेन्स अपॉन 6। यहाँ पर भी सेम 2 कॉमन निकाल लिया, 3 बच गया माइनस ऑफ रूट 3 बाय 6। अब ये क्या हो गया, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3 रूट 3 बाय 3। दिस इज द योर फर्स्ट क्वाड्रेटिक, this is the first root for this given quadratic, and this is x equals to 3 minus root of 3 by 3. The second root for this given quadratic equation, ये था ना हमारा given,
ओके, तो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया था। ओके, देखिए अब देखिए रियल है भाई, रियल है, लेकिन क्या है डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ओके, रियल इक्वल रियल डिस्टिंक्ट, बस ये दो केस हमको डिस्कस करना था। देखिए कितना यानी कि डुमरी क्वेश्चन था, यानी कि क्या करना था इसमें, जस्ट आपको बेस सेम करना था, फिर क्या है, तो जस्ट कैलकुलेशन था। ये तो 10th 9th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। ये तो फिर हमारा ये रीअरेंज करके हमने ये फाउंड कर दिया, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, ABCs विद जस्ट सिंपल अलजेब्रा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ओके ओके, इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। मगर इससे पहले हमको छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए केस 1 और केस 2। केस 1 में देखिए जो भी वाटर का फ्लो है इस डायरेक्शन में, और जो भी बोट का फ्लो है इस डायरेक्शन में। ओके, मोटर बोट। ओके, मोटर बोट। अब देखिए सेकंड केस में फ्लो ऑफ वाटर एंड द फ्लो ऑफ मोटर बोट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, वाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। अब देखिए इसको एक अलग स्पीड है, ओके, कंसिडर कर लिया हमने, जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि इस बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये है स्ट्रीम, तो इसको कंसिडर कर लेंगे हम, इसकी स्पीड, ये हो गई स्पीड, और इसको कंसिडर कर लेंगे हम x किलोमीटर पर आवर। ओके, सेम यहाँ पर भी 18 किलोमीटर पर आवर एंड x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए नाउ, अब देखिए ये हो गया अपोजिट, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में और हम बोट लेके इस डायरेक्शन में आ रहे, तो ये हो गया कंडीशन फॉर अपस्ट्रीम। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ अपस्ट्रीम कंडीशन एंड दिस इज नॉन एज डाउनस्ट्रीम। अगर हम स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं बोट लेकर, तो हो गया अपस्ट्रीम। अगर स्ट्रीम और हमारी भी जो डायरेक्शन रहेंगी बोट की वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तो उसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। अब देखिए, अब व्हाट यू वांट्स टू फाइंड, हो गया रिलेटिव। क्यों कह दिया हमने, क्योंकि देखिए ना हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को, वी आर द ऑब्जर्वर्स। ओके, हम क्या है ऑब्जर्वर, नहीं ये फास्ट जा रहा है ये। ओके, दैट्स वाई दीज आर द रिलेटिव इन नेचर। ओके, अब देखिए स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इक्वल्स टू difference between the speeds and speed of downstream equals to sum of speeds। अब देखिए, ओके, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। बोट का कितना स्पीड है 18 और स्ट्रीम का कितना x, दैट्स वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर अपस्ट्रीम यानी कि डायरेक्शन अगर अपोजिट रही तो जो भी रिलेटिव स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम रहेंगी, और यू कैन से ओनली द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ दैट बोट एंड स्ट्रीम। ओके, अगर डाउनस्ट्रीम यानी कि same direction, speed of downstreams, or you can say that a relative speed of a downstream equals to sum of these speeds। अब इसका कितना है 18 और इसका कितना है x किलोमीटर पर आवर। ये दो केसेस यहाँ पर हमको यूज करना है आयतन में। अब देखिए, अब देखेंगे हम एग्जाम्पल। देखिए बस ये याद रखना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में आप देखिए कैसे काम आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम पढ़ लेंगे। 15th नंबर, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ओके, स्टिल, नो फ्लो ऑफ वाटर। ओके, स्टिल इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। ओके, बराबर है। अब हमने यहाँ पे दिखा था डाउनस्ट्रीम में जो भी स्पीड क्या था वो ऐड हो गया था, तो स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपस्ट्रीम में क्या हो गया था, स्पीड घट गई थी, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाला था, तो स्पीड घट गई थी, इसलिए टाइम क्या हो गया था, बढ़ गया। यानी कि अपस्ट्रीम में
1 घंटा ज़्यादा लगा है उसको, ओके, कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, ओके। 24 किलोमीटर कांस्टेंट था। अब देखिए, to return the downstream to the same spot, find the speed of the stream. Okay, now see, let the speed of the stream हम कंसिडर कर लेंगे कि x किलोमीटर पर आवर है, ओके। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, x किलोमीटर पर आवर। नाउ सी, ओके, आयदन में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने कंसिडर कर लिया x किलोमीटर पर आवर। नाउ सी, स्पीड ऑफ बोट फॉर अपस्ट्रीम। अब देखिए, स्पीड ऑफ बोट फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा बोट का और स्ट्रीम का। तो बोट का कितना दिया है 18 और स्ट्रीम का कितना है हमने कंसिडर कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ओके। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने कंसिडर कर लिया x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट फॉर द अपस्ट्रीम। नाउ अगेन, स्पीड ऑफ बोट फॉर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है ना, सम ऑफ स्पीड हो जाता है बोट का प्लस स्ट्रीम का किलोमीटर पर आवर, ओके। अप टू दिस यू शुड डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ सी, अब देखिए अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बोट फॉर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय द बोट फॉर अपस्ट्रीम। अब देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट यू वांट, टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देयरफॉर टी इक्वल्स टू। अब देखिए, अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम, उतने कितना डिस्टेंस है उसको कवर करना है 24, यानी कि डिस्टेंस कितना है 24। देखिए, टाइम टेकन बाय द बोट फॉर द अपस्ट्रीम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितना था 18 माइनस एक्स, ओके, यू कैन से T1, ओके, फॉर अपस्ट्रीम। नाउ सेम फॉर टाइम टेकन बाय बोट फॉर डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ओके। देयरफॉर T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस भाई सेम ही था, ओके। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा टाइम 18 प्लस एक्स, ओके। अप टू दिस नो प्रॉब्लम। देखिए, अब ये मिटा देता हूँ क्योंकि हमने x कंसिडर कर लिया था ऑलरेडी, ओके। x क्या है, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। अब देखिए, ओके, इतना हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब देखिए, एक कंडीशन दिया है कि इट टेक्स 1 और मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउनस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि ऐसा अपोजिट, तो उसमें कैसा 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अब देखिए, अब आएगा कमाल। क्या कह दिया उन्हें, टाइम टेकन टू अपस्ट्रीम, हाँ, टाइम टेकन बाय और टाइम टेकन बाय, ऐसे भी कह सकते हैं हम, टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम इज 1 hour more than the time taken by downstream। देखिए, ये गिवन कंडीशन से हमको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या कह देता है उन्होंने, टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम, ओके, 1 hour more than the time taken by downstream। अब देखिए, हमारे पास टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम है क्या, यस, ये कितना है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 एज इट इज। नाउ टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम कितना है हमारे पास, हाँ, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। देखिए भाई, यही से अब हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, एग्जाम्पल सिंपल ही है, जस्ट उसमें 1-2 कॉन्सेप्ट आपको पता रहने चाहिए। अब देखिए, आई एम शिफ्टिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स वाई 24 अपॉन 18 माइनस एक्स,
ओके, माइनस ऑफ 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1. ओके, आई हैव शिफ्टेड दिस प्लस 24 अपॉन 18 माइनस एक्स ऑन द 24 प्लस एक्स चाहिए ना, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या प्लस एक्स है. अब देखिए, ओके, आई हैव शिफ्टेड दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जाएंगे. 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस ऑफ 24 इंटू 18 माइनस एक्स, ओके, अपॉन 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाउ मेनी 1. नाउ देखिए, अब हमको सॉल्व करना है ये इक्वेशन और इससे फॉर्म करना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डोंट स्लीप, डोंट स्लीप, वेट मिनट. अब देखिए 24 इंटू 18 जस्ट ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू एक्स, ओके 24 इंटू एक्स. अब देखिए यहाँ पे माइनस 24 इंटू 18 माइनस 24 इंटू माइनस माइनस गेट प्लस, यानी कि 24 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू. अब देखिए आई कैन शिफ्ट ऑन दैट साइड, दैट्स वाई 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स. ओके, आई हैव शिफ्टेड दिस ऑन द राइट. अब देखिए 24 इंटू 18 माइनस 24 18 गेट कैंसिल, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था. अब देखिए 24x यानी कि 48x इक्वल्स टू. अब देखिए, अब 18 इंटू 18 अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें. 18 इंटू 18 हो गए. अब 18 इंटू एक्स प्लस 18 टाइम्स एक्स माइनस एक्स इंटू 18 दैट मीन्स माइनस ऑफ 18x माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. अब देखिए ये प्लस 18x माइनस 18x गेट कैंसल. अब देखिए क्या बच गया है 48x इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 18 324. हाउ मेनी 324. ये हो गया कैंसल माइनस एक्स स्क्वायर. ओहो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है भाई. अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर शिफ्ट कीजिए, क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x. अगेन प्लस 324 शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा माइनस 324 इक्वल्स टू 0. बन गया है ना भाई क्वाड्रेटिक. कितनी मेहनत करनी पड़ी भाई, लेकिन जो भी वर्ड प्रॉब्लम है ना उसको ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको करना पड़ेगा. अब देखिए मैं पूरा मिटा देता हूँ अब, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है हमारा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0. लेट मी चेक इज इट ओके और नॉट. मैं करते बैठूंगा. यस, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू या राइट. अब देखिए, नाउ कंपेयर विद दिस स्टैंडर्ड टू गेट द वैल्यूज ऑफ ABC. A equals to 1, B equals to 48 and C equals to minus 324. Oh, what is the quadratic formula? X equals to minus B plus minus under root of B square minus 4AC by 2 times A. Now put the values of ABC. X equals to minus of B is how many? 48 plus minus under root of B का स्क्वायर यानी कि 48 इंटू 48 माइनस ऑफ 4 टाइम्स A. A इज हाउ मेनी 1. ओके, C इज हाउ मेनी माइनस 324 अपॉन 2 टाइम्स A इज हाउ मेनी 1. अब देखिए, अब है थोड़ा कैलकुलेशन. भाई आंसर निकालना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई हमको. विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल, ओनली द वे ऑफ सक्सेस. x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमें 48 इंटू 48 इंटू 48 ये होगा 4, ये होगा 10, ये होगा 2304. अब देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है लिख देता हूँ मैं.
2304। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 324 इंटू हमें क्या करना है 4। अब देखिए 1296, 1296। अब देखिए 2 इंटू 1 2। ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम। अब देखिए अब क्या करना है, अब जो रूट में है ना क्या है उसको हम कर देंगे ऐड। ओके, देखिए 2304 प्लस 1296, ये हो गया 10 फिर से 6 3। ओके, क्या आ गया x इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3600 अपॉन 2। therefore x equals to -48 under root of 3600 60. What is root of 3600 is nothing but 60. Yes, plus minus 60 by 2. अब देखिए अब निकालेंगे हम रूट्स। अब देखिए x equals to -48 plus 60 by 2 and x equals to -48 minus 60 by 2. Okay, therefore x equals to -48 plus 16 12, 12 by 2. That's why x equals to 6. Okay, और x हमने क्या कंसिडर कर लिया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट मीन्स x 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए x इक्वल्स टू -48 minus 60 कितना हो जाएंगे, कर लीजिए, डरना नहीं, -108 by 2 and -108 by 2 is nothing but -54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमने x क्या कंसिडर कर लिया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक बार लिख लेता हूं मैं, बस अब फाइनल आंसर की तरफ हम देखिए x क्या था हमारा, लेट x बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, अब देखिए हमारे पास x के दो वैल्यूज है, x6 और एक -54। -54 you have to neglect because speed never be negative, that's why you have to neglect this route. Okay, take this route. Okay, therefore speed of stream is 6 किलोमीटर पर आवर। और यही था हमारा आज का इस वीडियो का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सवाल। व्हाट इज 6 किलोमीटर पर आवर। इतना कुछ करना पड़ता है भाई, विदाउट मेहनत नथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो अब देखिए इसके अगले वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या एक्सरसाइज 4.3, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग है, सभी टॉपिक इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।